IPO and main board IPO, apart from the limits कि किस टाइप की कंपनी जा सकती है, जैसे बड़ी कंपनियां मेन बोर्ड पे जाएंगी, छोटी कंपनियां एसएमई में जाएंगी, कोई और भी डिफरेंशिएशन फैक्टर्स है बिटवीन देम? सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है कि एसएमई मार्केट बना ही एसएमईज के लिए, एसएमई स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनी के लिए। तो एक लिमिटेड साइज का इशू ही आता है, दो लीगल लिमिटेशन नहीं है। We have, SEBI has not prescribed what the maximum size at which for which you can raise funds through the SME board. But जो भी बड़ी साइज की कंपनी है, उन सब कंपनियों के लिए मेन बोर्ड ही बना है। Welcome to the Corner Office, the podcast where we explore the world of business, leadership, and success strategies. I'm Sanchit Vijay from Corporate Professions. Did you know that over 550 small and medium enterprises have been listed on the India's Bombay Stock Exchange SME platform since 2012, and nearly 200 of them have already migrated to the main board? That's not just the growth, that's transformation. In 2024 alone, a record breaking 243 small and medium enterprises tapped into the capital markets, raising over 12,000 crore rupees in growth capital. And the momentum continues in 2025. But what's even more striking is that thousands of fast growing eligible businesses are still on the sidelines. Often not because they lack potential, but because they don't know where to begin. To help us decode this journey, we have with us Mr. Manoj Kumar. With over 20 years of experience in investment banking, M&A, corporate restructuring, he's a powerhouse in the world of IPOs. As a partner and head of investment banking at Corporate Professional, he has led and advised in some of the most complex IPOs and M&A transactions, both in India and globally. Welcome to the Corner Office, sir. Welcome again. And आज भी we will be talking about lots of interesting things around IPOs, SME IPOs, valuation, the process, fundraising, everything. So, uh, I think to start off, I think the very basic thing. What exactly is an IPO and why do companies choose to go to public? मतलब क्यों जाना है पब्लिक? अच्छी खासी रजिस्ट्री तो भी चल रही है, प्राइवेट कंपनी है, व्हाई शुड आई गो पब्लिक? So देखो सचिन, corporate life is unlimited, as we say, perpetual succession. So there is a journey. Company starts as an idea. It may be in the form of partnership or proprietorship in the beginning, but slowly it gradually upgrades to become a private company. Then the growth journey starts. So idea takes shape and it becomes a small tree. So there will be a requirement of funds. So there will be different kind of funding opportunities like venture capital fund, then private equity fundings, or maybe some other people who are willing to, friends and family who are willing to put the money on the entrepreneur or the company. So they are putting money. So that is a journey and through which the company flourishes. Simultaneously, the company has the opportunity to raise funds through debt, like banks and institutions. They are funding for various projects. So this is the journey for a normal company. But what is the option to get liquidity for the shareholders? What is the option to take exit whenever it is required, or enhance the value which has been created? So the only option which is very logical for a company when they become a quite a big size or reasonable size company is to go public, because public going public or coming out with IPO gives liquidity to all the shareholders, all the equity holders of the company. They can, whenever they need fund, they can sell their share in the market, or maybe sometimes pledge the share, and their value is already reflected in the process. So they get money in the form of debt by pledging the shares. So those all options can get open. Besides that, there are many other benefits, collateral, which we can say, like uh, if a company is a listed company, it is assumed to be well governed, better governed company. So the confidence of all stakeholders, be customers, suppliers, employees, or bankers, everyone gets boosted through listing process. So it gives a leap jump to a company
when they get listed. So that's the Can we safely say that a company getting listed is sort of considered as an end goal in the journey of a corporate structure? value. Unless it is acquired or merged with some other corporate house, ultimately a company has to go listing. Then only an unlimited source of corporate funding, various cycle of funding can start, and then company can grow definitely infinitely. Though it is possible that after in many of the company, like in case of startups, after sometimes they may get acquired by another big company or another listed company, and they get consolidated. So that is the one way where their existence goes. But if the existence has to continue, ultimately it has to come with IPO and get public. Okay, that is the journey. तो सर इस पूरे आईपीओ प्रोसेस में आई थिंक पिछले कुछ सालों में 3 4 5 सालों में एक बहुत ही बज़वर्ड है एसएमई आईपीओ. ऐसा क्या हो रहा है कि दैट these medium and small enterprises have started to realize the potential of getting public, and the SME IPO index has been gaining a lot of traction, and the return over SME IPO index on BSE is also phenomenal. So what exactly is happening behind this rapid growth? What are the factors? So संचित, नॉर्मली जैसे उन्होंने कहा कि SME स्मॉल साइज कंपनी है, उन पे सोर्स ऑफ फंड बहुत लिमिटेड होते हैं. द ऑप्शंस अवेलेबल लाइक वेंचर कैपिटल फंड, फर्स्ट सीड फंडिंग और फैमिली फ्रेंड्स फंडिंग. Second is option is venture capital funding. Third option is if they grow further, private equity funding, or simultaneously debt funding is traditional debt funding. तो ये तो चलता रहता है. But for a smaller company, इनके पास बहुत सारे hurdles होते हैं. Like they don't have the capacity to give securities for getting borrowed fund. एंड जो बिजनेस ऐसे नहीं जो रैपिडली ग्रो कर रहे हैं उसमें, तो उसमें वेंचर कैपिटल फंड्स का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता नहीं है. और अगर होता भी है तो उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है, बिकॉज दे कम विद द इंटेंट टू टेक वेरी वेरी गुड रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, एंड दैट may not be sustainable in every business model. Like in case of normal manufacturing company, there can be organic growth. So that organic growth does not appeal to investors like venture capital funds. So such investors are such companies are not getting enough fund opportunity, raising fund opportunity. It is visible in maybe the various in the last 10 years back. So government also thought, or SEBI also thought, that there should be an opportunity to smaller companies also to get the benefit of pool of fund which is available from the listing space, where there are lakhs of crores of investors. So वो अपॉर्चुनिटी उन्हें देने के लिए 2012 में उन्होंने लॉ चेंज किया और अलाउ किया इंडिया में SMEs भी लिस्टिंग करा सकते हैं in a simplified manner. Yes, they have put certain restrictions and certain protections, like smaller, very small shareholders should not get invested in such company because the risks are high, being the smaller in size. So उन्होंने कहा कि मिनिमम थ्रेशोल्ड 1 लाख से कम का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, और इन्वेस्टर्स की कम्युनिटी भी लिमिटेड हो, जो कैपेबल होंगे समझने को, बिजनेस को समझने को और रिस्क लेने में कैपेबल होंगे, तो उन्होंने अलाउ किया. बट 2012 से 2018-19 की जर्नी शायद एसएमई मार्केट की बिल्कुल नहीं के बराबर, क्योंकि जो भी इसमें आईपीओ आ रहे थे वो बहुत छोटे थे साइज में, और उनकी फंड रेजिंग भी नहीं उतनी के बराबर हो, केवल फंड रेजिंग हो भी जा रही थी, तो ग्रोथ नहीं थी, कैपिटल बिल्टअप नहीं हो पा रही थी, वैल्यू क्रिएशन नहीं हो पा रही थी. बट उसके बाद देयर इज एन इक्विटी कल्चर इज डेवलपिंग. बहुत सारे नए डीमैट अकाउंट खुले, जो फंड हमारे पहले एक तरह से इनऑर्गेनिक अनऑर्गेनाइज थे, डिमोनेटाइज या और बहुत सारे स्टेप्स जो गवर्नमेंट लिए उसके परस्यूट वो बैंकों में आ गए, बैंकों से डीमैट अकाउंट्स खुलने लगे, और उस फंड्स जो सेविंग हो रही थी उनका इन्वेस्टमेंट शुरू हुआ. इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे रूट्स थे, लाइक मे बी इन नॉर्मल कोर्स में बोर्ड लिस्टेड कंपनी में इन्वेस्ट करना और म्यूचुअल फंड्स में लगाना. पर बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो समझदार थे उन्हें लगता था कि जो ट्रेडिशनली लिस्टेड कंपनी है, मेन बोर्ड लिस्टेड कंपनी है, उसमें ऑर्गेनिकली उनका फंड ग्रो कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी सैचुरेटेड टाइप की सिचुएशन में. Whereas there are ventures which are good, they have great potential and they are growing rapidly. Year on year 70-80% CAGR से ग्रो कर रहे हैं. ऐसी कंपनियों में अगर पैसा लगाते हैं तो ग्रोथ के चांसेस भी ज्यादा होते हैं.
तो लोगों ने इन एसएमईज को टारगेट करना शुरू किया और एक एसएमई की बज़वर्ड क्रिएट की। यस, IS हाई मिनट वाले लोग आ गए और इस तरह से करके उसमें इन्फ्लक्स आया फंड का। और यही इन्फ्लक्स जो फंड का था, इन्होंने दूसरे एसएमईज को भी ल्योर किया कि वो भी इस मार्केट को टैप करने की सोच सकते हैं। सो 2019 ऑनवर्ड बहुत तेजी से ये एसएमई मार्केट ग्रो किया और क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था और फंड रेजिंग थोड़ी होती है इन केस ऑफ एसएमई आईपीओ, बहुत सारे इन्वेस्टर थे जिन्हें फंड नहीं है, शेयर नहीं मिलते थे इस पे कभी आईपीओ के दौरान। सो दे वांटेड टू गेट इनटू दैट जर्नी ऑफ ग्रोथ and they started looking at even the post listing scenario, and hence the post listed SME market also grown started. So this is the journey. हम सभी जानते हैं कि एसएमईज में बहुत पोटेंशियल है। इंडिया का बहुत बड़ा चरित्र है, बिजनेस है जो एसएमई के फॉर्म में चल रहा है और उनमें से सभी बहुत सारी अच्छी कंपनियां हैं, बहुत सारी इस लेवल तक पहुंच चुकी है कि वो फर्दर ग्रो कर सकती हैं अगर उनको सही टाइम पे फंड मिले। और इसलिए जर्नी अभी स्टार्ट हुई है। यू कैन से इट इज ओनली अ 5-6 years जर्नी एंड इट कैन गो वेरी डीप एंड बाउंड फ्रॉम हियर। So, with respect to SME IPO and main board IPO, apart from the limits, कि किस टाइप की कंपनीज आ सकती है, जैसे बड़ी कंपनियां मेन बोर्ड पे जाएंगी, छोटी कंपनियां SME में जाएंगी, कोई और भी डिफरेंशिएशन फैक्टर्स है बिटवीन देम? सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है कि एसएमई मार्केट बना ही एसएमईज के लिए, एसएमई स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनी के लिए। तो एक लिमिटेड साइज का इश्यू ही आता है, दो लीगल लिमिटेशन नहीं है। We have SEBI has not prescribed what is the maximum size at which for which you can raise fund through the SME board, but जो भी बड़ी साइज की कंपनी है उन सब कंपनियों के लिए मेन बोर्ड ही बनाया है क्योंकि वो इमीडिएट विजिबिलिटी देता है, लार्जर पूल ऑफ इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करता है। whereas एसएमई आईपीओ में लिमिटेशंस हैं, गवर्नमेंट भी नहीं चाहती, सेबी भी नहीं चाहती कि भाई 10-10 हज़ार रुपये 1,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट्स आए और मार्केट में भी 1 शेयर की ट्रेडिंग हो, ऐसा नहीं हो सकता। सो देयर इज अ लिमिटेशन। दे हैव सेड दैट द इन्वेस्टमेंट वुड हैपन इन लॉट्स एंड दैट सेल विल आल्सो हैपन इन लॉट्स। सो देयर इज नो very huge liquidity in the shares of the SME listed company. So that is one limitation. Another limitation is because they are small. SEBI has also prescribed that they can get listed with the vetting process of the stock exchanges, not going to the SEBI. They don't want to get burdened by the SME IPO because they expected that the number will be very huge. So वो एक प्रॉब्लम है, लिमिटेशन है। तीसरी बात है कि गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने रिलैक्सेशन दे रखा। सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो मेन नॉर्म्स हैं जो सारी लिस्टेड कंपनी से एप्लीकेबल होते हैं एसएमई बोर्ड लिस्टेड कंपनी पर नहीं होते हैं। देन द रिक्वायरमेंट ऑफ रिजल्ट, क्वार्टरली बेसिस रिजल्ट डिस्क्लोज करने की रिक्वायरमेंट को भी उन्होंने रिलैक्स कर दिया है। तो हाफ ईयरली बेसिस पर रिजल्ट देने होते हैं। कॉस्ट भी कम है, लिस्टिंग के समय जो सेबी की फीस होती है वो परसेंटेज टर्म में है, whereas in case of SME listed ये बहुत ही म्यूनिसिपल है कंपेयर टू दैट। सो लेस कॉस्ट में आप लिस्ट करा सकते हो, लेस कंप्लायंस बर्डन के साथ कंटिन्यू कर सकते हो जब तक आप SME बोर्ड पे रहे। ओके, सो लेट्स से सर, अब ये तो समझ गए कि SME IPO और मेन बोर्ड क्या है। लेट्स से आई एम अ फाउंडर, मेरी एक SME कंपनी है विद अ डिसेंट साइज। हाउ डू आई असेस कि इज माय कंपनी रेडी टू गो पब्लिक? तो किन किन चीज़ों को मुझे ध्यान रखना है विद इन इंटरनली माय कंपनी कि मैं आज रेडी हूँ SME या IPO जाने के लिए, पब्लिक से पैसे उठाने के लिए? सो आई थिंक संचित सबसे पहले समझना होगा ये माइंडसेट है। Whenever you are a listed company, you become the promoters or the company becomes trustee of the fund of the public. Okay. Pool of fund they are attracting. Investors बहुत सारे आते हैं तो उनके फंड का डे टू डे प्रोटेक्शन कोई नहीं कर सकता। तो एक तो ट्रस्टीशिप वाली माइंडसेट को चेंज करनी है। ठीक है। दूसरा लेवल ऑफ डिस्क्लोजर, ट्रांसपेरेंसी एंड गवर्नेंस को चेंज करने की बढ़ जाता है और बढ़ता नहीं भी है तो हमें समझना है कि वो क्योंकि आप बहुतों के पैसे को यूज कर रहे हो जो कि आपके डे टू डे इफेक्ट्स में इन्वॉल्व नहीं है, तो उनकी ऑब्वियसली आपकी उनके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। सो दैट इज अनदर थिंग। सो गवर्नेंस एंड कंप्लायंसेस के लिए रेडी होना, अपने माइंडसेट को ठीक करना और इंटरनल प्रोसेस एंड सिस्टम्स को इस लेवल का पहुंचाना जो पोस्ट लिस्टिंग सिनेरियो को हैंडल कर सके। सो
that infrastructure is very important. If you have that and you are at a place where you can continue to grow, क्योंकि जब इन्वेस्टर का पैसा है तो उनकी एक्सपेक्टेशंस होती है कि आप रेगुलर बेसिस को परफॉर्म करो. दो इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी you cannot give forward looking statement or projections in your offer documents, but आपको ये समझना है कि हर इन्वेस्टर चाहता है कि उनका वेल्थ बढ़े, तभी वो आप में पैसा लगा रहा है. और ये जर्नी की स्टार्ट है. whenever you are listing, it is not that you are raising the fund once and you become a listed company for perpetuity and nothing will happen thereafter. So you have to go, after 3 years you can go to the main board, become a normal listed company. You continue to raise fund through various most available to a listed company like QIP placement, direct placement, follow-on offers, rights issue, all The loyal fund base. further fundraising कर सकते हो कैपिटल मार्केट्स के. उसका बेनिफिट आप तभी ले सकते हो जब आपने परफॉर्म करके दिखाया है, आपने इन्वेस्टर्स की वेल्थ को क्रिएट, अपनी वेल्थ के साथ प्रमोटर ने इन्वेस्टर्स का वेल्थ भी क्रिएट किया है. तो प्रोफेशनलिज्म लाने की जरूरत है और परफॉर्म करने की जरूरत है. रैपिडली ये एक बार फंड ले लिया और आप चुप हो गए, बिजनेस को स्कैनर में छोड़ दिया, ऐसी सिचुएशंस होंगी तो आप साइडलाइन हो जाओगे मार्केट से. एंड देयर आर, as at present almost 1200 companies are listed on SME board, but almost 700 of them are not performing well because जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशन या जो फायर चाहिए थी वो आप शायद प्रोमोटर्स या लाइक कॉर्पोरेट्स नहीं देखी. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कब राइट टाइम है जब आप उसमें पब्लिक से फंड रेज करो. और इनफैक्ट किसी से भी फंड रेज करो. अगर आप प्राइवेट इक्विटी के पास जाते हो तो वो भी रैपिड ग्रोथ ही चाहते हैं. सो जर्नी तो सेम है. आपने यहाँ पर आपके सर पे कोई नहीं बैठा है which is asking you quarterly basis NIS or even monthly NIS or board seat and putting you that your equity would get diluted if you are not performing, etc. But without saying, shareholders are also saying the same. So you have to keep performing. Accountability बनेगी तो आपकी माइंडसेट चेंज हो गया. गवर्नेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनल इकोसिस्टम आपने क्रिएट कर लिया और राइट थ्रेशोल्ड पर पहुंच गए जहाँ से I think that's a really great input, sir. कि that mindset अगर ready है ना, that's the time where you have to get public. So let's say मेरा mindset मैंने ready कर लिया. I want to raise funds. What is that step one? So इसको मैं दो तरीके से पूछूं आपसे. तो मैं अब क्या step लूं? Who should I hire? What all intermediaries? What all people should I onboard in my team to take my company public? Because ये भी एक long journey है. अगर मैंने आज decide किया है तो शायद मेरे को अपनी practices को बदलना होगा. फिर IPO आएगा, उसके बाद compliances जैसे आपने बताया बढ़ जाती है. So who are the people that I should hire pre, during and post to help me in this IPO journey? External, internal, anybody. So सबसे पहले मैंने कहा जैसे अपना इंटरनल इकोसिस्टम ठीक करना है. हो सकता है कंपनी के मैनेजमेंट, एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट अपने यहाँ की कैपेबल को बहुत सिस्टमेटिकली चल रहा हो तो उसे इंटरनल चेंज करने की ज़्यादा जरूरत ना पड़े इवन बिकमिंग पब्लिक. बट देन एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स की जरूरत होती है. सो सेबी हैज प्रिस्क्राइब्ड दैट यू हैव टू ऑनबोर्ड मर्चेंट बैंकर who is registered with SEBI. Okay. And they can only advise you or take you to the journey of IPO. तो आपको एक SEBI registered category 1 merchant banker को onboard करना है. सबसे पहले आई थिंक कोई भी मर्चेंट बैंकर आएगा तो आपकी बेसिक डिलीजेंस करेगा और सिस्टम आपके बिजनेस एनालिसिस करके आपके लिए चेक करेगा कि आप फिट हैं Yeah, कि नहीं और फिट हैं कि नहीं. और फ्रैंक सजेशन दे. एक राइट मर्चेंट बैंकर आपको अगर मिल जाए वो आपको फ्रैंक सजेशन देगा कि क्या क्या चेंजेस जरूरत होंगे. सो देन यू कैन गो टू द पब्लिक. देन यू शुड हैव द अदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर एंड पर्सन हु शुड यू हायर इज अ गुड ऑडिट फर्म. जो सेबी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से एनी पीयर रिव्यूड फर्म कैन बी योर ऑडिटर, स्टैट्यूटरी ऑडिटर. बट अगर वो अच्छी क्वालिटी के ऑडिटर हैं तो आपकी सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस को, डिस्क्लोजर को, क्वालिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे. सो अकाउंटिंग, बिकॉज दैट इज the annual report, which includes balance sheet, cash flow statement, and profit loss statement, that is the first document which anyone can see. तो उसकी ऑथेंटिसिटी बहुत मैच्योर बेसिस पर बनी होनी चाहिए, होनी चाहिए. तो अगर आपने अच्छा ऑडिटर ऑनबोर्ड कर लिया वो आपको 1 साल
मेरे ख्याल से 1 साल पहले जर्नी स्टार्ट करने से 1 साल पहले ही हायर करना चाहिए। तो उससे आपके बहुत सारे सिस्टम्स, प्रोसेसेस, गवर्नेंस सिस्टम सब ठीक हो जाएगा। सो ये 2 एजेंसी शुरू करने के लिए है। Then Mustard Banker would advise you to hire some legal advisor who will be doing diligence and documentation for IPO. Okay. So that will be there. Then you have to mandatorily get your shares dematerialized. So there will be a registrar share transfer agent that will be appointed. So all the shares would get dematerialized. So these are the first 4 agencies which will be working towards the journey of IPO. राइट टाइम पे IPO मार्केट में जाना चाहिए, दैट वेरी इंपॉर्टेंट। सो राइट एडवाइस अगर आपको मर्चेंट बैंकर ने दी, कब आपको DRHP बढ़ा के फाइल करना चाहिए, कब इश्यू खोलना चाहिए, तो उसकी राइट एडवाइस मिल जाए, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो अगर आपने जर्नी स्टार्ट कर दी, डोंट रश फॉर द लिस्टिंग। लोग अगर कोई इंटरमीडिएट फंड की लीक है तो आप दूसरे सोर्सेस लाइक बैंक फंड्स, फाइनेंसिंग, मे बी वर्किंग कैपिटल लोन और कुछ की जगह हो तो वो, या मे बी लिमिटेड पॉइंट भी IPO इन्वेस्टमेंट को लेकर आप अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं, ग्रोथ हैम्पर ना हो। Okay. एंड देन मर्चेंट बैंकर जब राइट ट्रेड करिए, उस समय आप पब्लिक इशू उसको बाद में आएंगे। Basically, merchant banker एक 1% बैंकर इज एक बेसिकली team के captain की Yes. तरह है, who takes all the call, advises the company कब IPO लाना है, DRHP फाइल करना है, और external लोगों को hire करना है, so that is तो right merchant banker होना is very important. Okay. सर इस पूरे प्रोसेस में टाइमलाइन क्या रहती है? सो लेट्स से मैंने सोच लिया कि IPO लेकर आने वाला, जैसे आपने बताया माइंडसेट शिफ्ट हो गया है, मैंने सोच लिया कि IPO लाना है। व्हाट इज द टाइमलाइन दैट आई कैन गेट माय IPO इन, कीपिंग इन माइंड मेरे सारे कंप्लायंस इन चेक है, एवरीथिंग इज इन चेक, मर्चेंट बैंकर मैंने अच्छा हायर कर दिया, सो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट टाइमलाइन दैट आई कैन गेट एन IPO? सो देखो, शॉर्टेज बताना तो ऐसे तो बहुत मुश्किल है। Okay. हर कंपनी अलग है, कुछ में बिल्कुल कोई प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, कुछ में इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज करने की, शेयर होल्डिंग चेंज करने की नीड हो सकती है। Okay. तो गवर्नेंस स्ट्रक्चर को चेंज करने की, बोर्ड पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैंड करने की, ऑल दोस थिंग्स की जरूरत हो सकती है। पर अगर आप इन सब चीज़ों में कंप्लायंस को टिक कर रहे हैं, अच्छी क्वालिटी के ऑडिट आपके साथ ऑलरेडी है, then I think 4 months is the right timeline to Okay. get the DRHP ready, documentation ready. और उसके बाद स्टॉक एक्सचेंजेस, राइट स्टॉक एक्सचेंज आपको BSE और NSE दोनों के SME बोर्ड हैं, तो उनमें से राइट एक्सचेंज कौन सा है वो आपको मर्चेंट बैंकर दर्ज करेगा, आप उसमें खरीद सकते हैं। और जनरली the approval will come from 2 months to 4 months process. So it is not an approval, but their observations will come. They will do a lot of scrutiny of your document, disclosures, side gigs, etc. And then you will get the approval from stock exchange to go ahead with the listing. So उसके बाद आपके पास फिर 1 year का टाइम मिलता है। So it is not कि आप रेडी हो गए तो इमीडिएटली खोलना ही खोलना है। अगर मार्केट कंडीशन ठीक नहीं है, या आपको लगता है कि ये राइट अपॉर्चुनिटी नहीं है, राइट टाइम नहीं है किसी भी रीजन से, तो देन यू कैन डेफर इट अप टू 1 year. You have to, in such cases, if you are deferring it, you have to restate your financials for additional period, maybe at year end full, or maybe some 1 quarter or 2 quarter, and then you can come out with that. So minimum timeline, I think 8 months, Okay. 7-8 months, or maximum it can be 1.5 तो मतलब 4 से 5 महीने में मैं अपना DRHP फाइल कर दूंगा, 2 से 4 महीने में अप्रूवल आ जाएगा फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज। अप्रूवल आने के बाद मेरे को 1 साल का टाइम देती है कि इस 1 साल में मैं IPO कभी भी खोल सकता हूँ, कीपिंग इन माइंड द मार्केट कंडीशन। मर्चेंट बैंकर आपको एडवाइस करता है Yes. कि दैट आपको कब खोलना चाहिए एज पर दी टाइमलाइन। इस पूरे प्रोसेस में कॉस्टिंग लगभग कितनी रहती होगी? देखो संचित, SME IPO प्रैक्टिकली बहुत, अगर स्टैट्यूटरी एंड फिक्स कॉस्ट की बात करें तो बहुत लिमिटेड होगी, बिकॉज इन मेल बोर्ड IPO सेबी की फीस है विच इज 0.5% ऑफ द इशू साइज, वेयर इन दिस केस इट इज ओनली 25,000। सो वो कॉस्ट भी कम है। मर्चेंट बैंकर की डॉक्यूमेंट बनाने की फीस भी बहुत कम होती है। लॉयर्स भी बहुत लिमिटेड कॉस्ट में, Because it's, small. specific. Everyone knows it is smaller. Same goes for auditors also, statutory auditors also. So for overall cost, I think जो fixed nature की cost है वो in the range of 75 lakh rupees की आती है। Besides that, there will be fundraising. So there will be one market maker, then there will be underwriters who will underwrite the shares. By default, in case of SME IPO, all SME IPOs are fully underwritten. So
If it is opening, it has to be fully subscribed. Otherwise, the merchant banker is obligated to fulfill the shortfall. So that is, but obviously, merchant banker may take the support for external underwriter who are also registered with SEBI. And in such cases, she would be fully underwritten. So underwriters, she will be there. So that is one part. Then there will be syndicate members, other syndicate member who will help to raise the fund. So there will be road shows, PR agency who will help you in all these things. A merchant banker and underwriter will also help you. So all those costs. So because the issue size are smaller, percentage term it may be higher. So generally, I have seen that if it is, let's say, 40-50 crore rupees IPO, the cost will be in the range of 10%. Okay. For higher size SME IPO, it will be maybe lesser than that. But if it is very small, like 10-12 crore IPO, that is also coming in SME, then the cost may be 17-18%. Okay. So that is a whole gamut. So because obviously in case of a small size company, the fixed cost will become Right. very high percentage in their in any case. So those things are there. So, sir, आप एक merchant banker हो and I think I believe बहुत सारी companies को you would be looking at scrutinizing. Yes. तो जब भी कोई कंपनी आती है, I want to know from the lines mouth that what are the 5 red flags कि अगर ये red flag है तो इस कंपनी का आप लोग merchant bank आप IPO नहीं करोगे. So what are the 5 red flags? सबसे पहला फैक्ट आई थिंक सबसे पहले तो हमें कंपनी से पहले उसके पीछे लोग कौन है, फाउंडर्स. So founders or promoters, if it is a promoter-driven company or if it is a professionally managed company, then who are the key persons who are managing. So उनका intent समझना बहुत जरूरी होता है. Okay. Because being SME और कभी-कभी it is a भीड़ चाल होती है. लोगों को देखा कि एक ने Competitor ने लाया तो कंप्यूटर ने लाया, मेरे दोस्त ने लाया, मैं भी ले आता हूँ. That kind of mindset is not correct. Okay. तो ऐसे ऐसे तो founders को pedigree long term नहीं है. क्या है, तो उनकी पेडिग्री है, उनकी इंटेंट टू take the company forward because you are raising fund, you are raising fund from public at large. So वो ट्रस्टीशिप वाली व्यू है नहीं है, उसमें वो कमिटमेंट है कि नहीं, उसका अपना स्किन इन द गेम है कि नहीं लॉन्ग टर्म का. लॉ कहता है कि लॉकिंग होगी, बट लॉकिंग एक वन पार्ट है, शेयर लॉक ले जाते हैं, बट इंटेंट क्या है उससे सब पता चलता है. अगर इंटेंट है फंड की को आगे लेके जाने का, देन उसका विजन समझना है कि बिजनेस किस तरह से ग्रो कराने का है. फंड की नीड आर्टिफिशियल है या जेन्युइनली वो उसने प्लान किया है, हर पार्ट पे थॉट दिया है. लेट्स से उसको नया प्रोजेक्ट लगाना है, सो हैव दे गॉन इन डीप, मेड द प्लानिंग, डिटरमाइन व्हाट आर द सॉर्ट्स, रिस्क क्या है, रिवॉर्ड की थ्रेट्स क्या क्या आ सकते हैं, अपॉर्चुनिटी है तो है कि एक्चुअल है या नहीं है, डीप रिसर्च की है कि वो प्रोमोटर्स की बात करने से हमें पता चल जाता है कि वो यूं ही बातें नहीं कर रहा, उसे पता है अपने बिजनेस के बारे में, पता है मार्केट के बारे में, पता है कॉम्पिटिटर्स के बारे में, पता है. तो वो थॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमें इनिशियल डिस्कशंस में पता चला. ठीक है. देन वी गो टू द फंड बैलेंस शीट्स. ऑब्वियसली इट इज नॉट अ रेड फैक्ट कि वो चेकलिस्ट में फुलफिल नहीं कर रहे हैं, एलिजिबिलिटी नहीं बनी, देन तो कोई बात ही नहीं. अगर वो एलिजिबल भी हैं तो हमें देखना होता है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस कितनी हैं, Okay. आपस में स्ट्रक्चर में क्लीनलीनेस है या नहीं है. क्लीन स्ट्रक्चर, फोकस्ड मैनेजमेंट, फोकस्ड बिजनेस एंड बिजनेस स्ट्रैटेजी की वो लगातार ग्रो करती है. मैं पर्सनल बेसिस पर देखूं तो मैं देखना चाहता हूँ हर कंपनी को कि क्या वो कंपनी 3 साल में मेन बोर्ड में लिस्टिंग के एलिजिबल होगी, और उसके लिए उसमें कैपेसिटी है. उसकी कंडीशन ऑब्वियसली मेन बोर्ड में अगर आप लिस्टिंग कराते हैं तो देयर आर क्राइटेरियाज. तो वो क्राइटेरिया तो एक तो फाइनेंशियल नंबर के टिक बॉक्स के क्राइटेरिया हैं, और मैं देखना चाहता हूँ कि जो इन्वेस्टर कम्युनिटी मेन बोर्ड को ट्रैक करती है, म्यूचुअल फंड्स, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, एफपीआईज, क्या वो कंपनी को लगता है ये 3 साल के बाद, क्या वो जर्नी लेने के लिए ये पैसा इंपॉर्टेंट है. अगर ये पैसा आईपीओ से आता है तो क्या ये 3 साल में उतनी बड़ी हो सकती है, उस लेवल की हो सकती है, उस पर के गवर्नेंस एथिक्स इनबिल्ड कर सकती है. अगर वो है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं है, इंटेंट है कि यही कराते हैं, फंड रेज कर लेते हैं, लेते हैं बैंक का लोन उतार देंगे, छोड़ ही रहेंगे, चलते नहीं, then it is not a right company to go for IPO. Okay. तो ये 3-4 रेड फ्लैग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. मैनेजमेंट का इंटेंट अगर क्लियर है तो जितनी गलतियां उसने पास्ट में गेट में की होगी उसको करेक्ट भी कर सकता है. तो हमें बहुत फोकस मैनेजमेंट पे करना पड़ेगा. एंड देन हम सिस्टम्स प्रोसेसेस चेक करते हैं, क्यों सिस्टम्स क्लीन है कि नहीं,
बनाए गए हैं और उसको फॉलो करते हैं कि नहीं, तो वो ये कुछ के शुरू के डिस्कशन से गैप्स निकल के आ जाते हैं, और ये गैप्स अगर वो बड़े में ही हैं तो मे बी समटाइम्स इट विल बी 2 years जर्नी बिफोर दे कैन गो टू पब्लिक, और अगर बिल्कुल सब कुछ ठीक है तो हम इमीडिएट बेसिस पर ऑन बोर्ड हो सकते हैं। ओके, That- तो मतलब फाउंडर्स की पेडिग्री, उनका इंटेंट, उनका विजन, वो कंपनी का बिजनेस कैसे देखते हैं, कितना ग्रो कर सकता है, और क्या डाउन द लाइन इन्वेस्टर्स उस जैसी कंपनी को लाइक करेंगे. सो दीज आर द सर्टेन फैक्टर्स दैट ऑल द फाउंडर्स should keep in mind Yes. before thinking of going public. Right. So कोई ऐसा हॉट सेक्टर है जो आपको लगता है इसलिए आईपीओ में आता है, लाइक पिछले 5 सालों में कोई ऐसा सेक्टर जिसके आईपीओस आर मच हायर देन द अदर सेक्टर्स, या कोई ऐसा मूविंग इंडस्ट्री या सेक्टर जो आईपीओस आने की पॉसिबिलिटीज आर मच मोर देन रिलेटिवली टू द अदर? देखो आईपीओ एसएमई बोर्ड में ऑलमोस्ट सब तरह के आ रहे हैं, बट जिसमें फास्ट ग्रोथ हो रही है, एवरीबडी नोज कि आज की डेट में रिन्यूएबल एनर्जी बहुत हॉट सेक्टर है, और न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी मे बी इलेक्ट्रॉनिकली एआई वेब3 टाइप की टेक्नोलॉजी के पर काम कर रहे हैं, या आपका बिजनेस यूनिक है, आपका बहुत बड़ा कंप्यूटर कोई बड़े साइज का नहीं है, मे बी इंडिया और इंटरनेशनली अगर वो है भी तो भिजवा दी, पर ऐसी कंपनी है तो इंडिया में यूनिक बिजनेस लेकर मॉडल लेकर काम कर रही है, तो ऐसी कंपनियों का एसएमई आईपीओ बहुत अच्छे से सक्सेसफुल होता है, सब्जेक्ट टू कि ये इट इज नॉट अ प्लेटफॉर्म फॉर स्टार्टअप्स हु आर नॉट अर्निंग कैश बट बर्निंग कैश, क्योंकि एसएमई आईपीओ उनका नहीं आ सकता, फिर उनको हाई रिस्क इन्वेस्टर चाहिए जो कि बड़े मेन ओल्ड आईपीओ, अगर वो 6 भी जो कहते हैं हम आईसीईआर का 6 भी होता है उसमें लेकर आते हैं, जहाँ 75% इज ईयर मार्क फॉर द क्यूआईडीज क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, तो अगर वैसी कंपनियां हैं तो इनको तो अलग कर दें, दे मे बी हॉट बट दे आर नॉट एलिजिबल फॉर एसएमई आईपीओ, बट अगर स्टेबल बिजनेस पर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है, सोलर एनर्जी लाइक विंड एनर्जी, और इससे रिलेटेड जो पेरिफेरियल बिजनेस हैं, और फार्मास्यूटिकल्स, उसमें बहुत सारे स्कोप हैं, अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है और आप आगे ग्रोथ कर सकते हैं, ऐसे ही कोई भी यूनिक आइडिया है जिसके साथ बिजनेस चल रहा है, जिसका कोई कंपटीशन बहुत बड़ा नहीं है, तो दैट इज अ गुड केस। तो सर इस पूरे प्रोसेस में आई हैव हर्ड एसएमई आईपीओ में देयर इज अ कांसेप्ट दैट इज कमिंग अप एज प्री आईपीओ फंडिंग. ऐसा क्यों हो रहा है कि मतलब प्री आईपीओ फंडिंग इज gaining a lot of traction also? Because Sanjay, pre-IPO funding is not a legal requirement or any. It is a new term coined for those investors who are coming within a year of company coming out with IPO. पहले की कहते थे 5Ds हो ये मेन बोर्ड के IPO होते हैं. So private equity in a public company. So public company है, होने वाली है, और इसलिए वो लोग आ रहे हैं. So they have the vision who can take you to the next level वैसे IPO. कई बार ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, लाइक कंपनीज ऑलमोस्ट रेडी फॉर आईपीओ, बट द प्रोसेस टाइम इज लेट्स से 6 to 8 months और समटाइम तो 1 year, एंड बिकॉज ऑफ द फंड कंस्ट्रेंट ग्रोथ इज गेटिंग हैम्पर्ड। इस समय कुछ लोग आते हैं जो आपकी हेल्प करने को तैयार हैं, पैसे ले डालते हैं कंपनी में, एंड दे टेक द रिस्क, and that in IPO they will get the liquidity, not from the company or promoter. तो ऐसे इन्वेस्टर को प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स कहते हैं. तो ये इन्वेस्टर्स कई बार बहुत अच्छे सपोर्ट सिस्टम बन जाते हैं. दे हेल्प यू इन नीड ऑफ द फंड, एंड ऑल्सो दे कैन कनेक्ट यू टू द, बिकॉज दे आर प्रोफेशनली मैनेज समटाइम्स, they can connect you to the right persons, right merchant vendor, right underwriters, और आपके सिस्टम्स प्रोसेसेस को ठीक करने में भी हेल्प करते हैं. सो क्योंकि आप एक फंड ले चुके होते हैं तो आपका सिस्टम्स थोड़ा सा बेटर हो जाता है, सिस्टमेटिक हो जाते हैं. सो आई थिंक दैट इज अ गुड थिंग विच इज डेलिंग. तो इस स्पेस में बहुत सारे ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं, दे आर वर्किंग, दे आर वेरियस FPIs, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, जो SME मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, और वो लोग इसमें आना चाहते हैं. Now, reason why they want to come in such companies which are not listed, and क्योंकि कई बार फेल भी हो सकता है IPO का प्लान, तो उसका रीजन सिंपल है. In IPO, you are not sure what share you will get or whether you will get share or not. Whereas in case of pre-IPO situation, you are definitely getting those shares,
and there is an upside which you see in the vision of the company कि जब वो लिस्ट करेंगे तो उसकी साइज बड़ी होगी, उसकी प्राइस बड़ी ग्रोथ होगी, उस ग्रोथ में आप पार्टिसिपेट करोगे. तो दे आर रेडी टू टेक सच रिस्क एंड दे हेल्प यू इन गेटिंग द राइट माइलस्टोन व्हेन यू गेट किक द मार्केट. Okay, interesting. So, as a merchant banker, valuation भी defined होती है. How should I look at my company, और मुझे अगर अपनी कंपनी की वैल्यूएशन जाननी है कि मैं कितनी वैल्यू पे अपने शेयर्स वैल्यू परवान आई रेस फंड्स, तो कैसे करते हैं वैल्यूएशन इन द एसएमई सेगमेंट? बिकॉज़ आई थिंक इसके अंदर पैक मल्टीपल इज यूटिलाइज्ड. सो देयर इज नो फिक्स फार्मूला कि क्या वैल्यूएशन सही है. हर इंडस्ट्री अलग है, हर बिजनेस अलग है, तो उसकी यूनिकनेस को निभाना होता है और उसके बेसिस पर राइट वैल्यूएशन डिसाइड करनी होती है. अब हम आईपीओ की बात कर रहे हैं, बिकॉज इन आईपीओ यू कैन नॉट गिव द फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट. जनरली आप अगर वैल्यूएशन के किसी मेजर के पास जाओगे, वैल्यूएशन पैरामीटर्स चेक करोगे, तो वो बोलेंगे you give your financial projections and based on that you either determine the value, which is called the discounted cash flow, which is considered to be the best method to value a business when growing business. But in case of IPO, because you cannot give forward-looking statement, you cannot give projections in your offer document, you have to rely on the past trend. तो यहाँ को क्या होता है कि एक्चुअल प्रॉफिट क्या अर्न किया पास्ट में, वही आपका डिटरमाइनिंग फैक्टर बन जाता है. नाउ सेबी के इकोनॉमिक पैरामीटर्स से देखें तो हर कंपनी को अपने प्रोस्पेक्टस में, ऑफर डॉक्यूमेंट में की परफॉर्मेंस इंडिकेटर टेबल है, KPIs. KPI can be different for different companies. Like in most of the companies, PAT multiple is the right determinant. But there may be others also, like return on equity, return on investment, EBITDA, क्या आप अर्न करते हो, एज ए एंटरप्राइज वैल्यू टोटल क्या है, उसके अंदर बाइफरकेशन बाद में होगा. सो ऑल दोस पैरामीटर्स आर एक्सक्लूज्ड and based on that valuation is done. However, generally post listing everyone looks at the price earning multiple, क्योंकि इन्वेस्टर्स को क्या मिलता है, वो देखते हैं EPS कितना है, अर्निंग पर शेयर कितना है उस कंपनी का, उस बेसिस पर सोचते हैं कि मेरे शेयर की वैल्यू क्या होनी चाहिए. तो EPS के बेसिस पर अगर हम वैल्यू करें तो वही कहलाता है PE मल्टीपल. पैट से कैलकुलेट कर लो तो पूरी कंपनी की वैल्यू निकलेगी, अर्निंग पर शेयर से कैलकुलेट कर लो तो पर शेयर निकलेगी. तो ये सिंपल मेथड है, थंब रूल मेथड है, जिसके बेसिस पर वैल्यूएशन होती है. अब हम बात करते हैं कि वैल्यूएशन क्या एक्सपेक्ट करनी चाहिए प्रोमोटर्स को, फाउंडर को. तो मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ सारे फाउंडर्स को कि वैल्यूएशन कुछ भी हो, आपको लॉन्ग टर्म विजन देखना है. द वैल्यू वुड ग्रो व्हेन यू गेट diluted, बट यू विल गेट मनी which will help you to grow faster. तो लॉन्ग टर्म विजन लेके अगर प्रमोटर चलता है तो शायद थोड़ी वैल्यू कम भी हो तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, and it will get there. You are not going out of the company, you are just diluting a minor part, and that would be going to the investors which are in large in number. So they should grow, their wealth can be created when there is a gap between the real value, if any, though real value is also not a right term, right calculation, but it's the right price for the person. So investors should feel that it is the right price, and promoters also should not feel that they are getting very cheap, they are getting diluted at a very cheap price. So balancing करनी होती है, यही काम अर्चन में का होता है कि उन्हें प्राइस एडवाइस दे कि किस प्राइस पर आपको अपने शेयर वैल्यू करनी चाहिए. और लॉ के हिसाब से मर्चेंट बैंकर तो आपने बोला कि मेरे को 100 रुपये बेचना है और वो 100 रुपये में बेचने चले जाएगा मार्केट में, बिक्री तो ठीक है, नहीं बिक्री तो कोई बात नहीं. बट प्रैक्टिकल होना यही है कि आप समझाओ कि if let's say industry has already 10 companies which are already listed at and getting available in the market, selling in the market at let's say 20 price to earning multiple, you should come out with some discount, let's say 18 or 17, so that there is a gap which will attract the investor to come in on board, and they will grow. Then they will obviously communicate to others, so it's only a community which will be getting created. So that is the way. So valuation के parameters ऐसे प्री फिक्स करना तो मुश्किल है, बट लोग कंपेयर ऐसे ही कर रहे हैं. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट. Interesting. So I think we are at the closing of our podcast, sir. आपने बताया रेड फ्लैग्स क्या क्या होते हैं. So अब पोस्ट IPO, अब लेट्स से मेरी कंपनी पब्लिक आ गई है, मुझे अपनी कंपनी के अंदर क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी? बिकॉज हो सकता है पब्लिक आने के बाद अगर मैं वो कंप्लाइंस ना करूँ
I may attract certain penalties, or there may be some repercussions of that. Right. So what are the things that I should keep in mind after getting public? Because लोग public जाने का तो decide कर लेते हैं कि public Right. जाना है, but after जब public हो जाओ उसके बाद की compliance किसी को realize नहीं होता, तो क्या क्या चीजें मुझे ध्यान रखनी है कि ये सब चीजें होनी चाहिए कंपनी में आपका getting public? तो संचित, मैंने जैसे शुरू में ही बोला कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राइट इंटरनल इकोसिस्टम पे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो, विच यूज फाइनेंस एंड अकाउंट compliances, corporate compliances, and then business. So business part obviously is the main part, but business थोड़ा है, right disclosure, right transparency नहीं है, या financial सही से नहीं बन पाते हैं, टाइम पे नहीं बन पाते हैं, तो problems. Same goes for, तो ये तीनों पहलुओं को ध्यान रखने की जरूरत है. अगर आपका इंटेंट क्लियर है, आप सही से काम करते हैं, तो आई डोंट थिंक कि हमें कंप्लायंस के लिए फियर करना चाहिए. बट कंप्लायंस कैन बी अ बिट कॉस्टली in normal circumstances also, and if you are a listed company, yes, you have to have a company secretary, a CFO who will look into the finance. उनकी कॉस्ट आएगी नेचुरली, तो आपका साइज इतना तो एटलीस्ट होना चाहिए कि उन सबकी कॉस्ट को बेयर कर सको. राइट क्वालिटी ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर, ये सभी नीड हैं एक लिस्टेड कंपनी की. सो अगर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया शुरू से या प्लान कर लिया है और उनकी कॉस्ट को इन्वेट करके आप बिजनेस को चला रहे हो, तो आई डोंट थिंक इट इज अ चैलेंज. तो ये सारे काम तो उनके हैं जो प्रोफेशनल इसी के लिए बने हैं, तो दे विल मैनेज दोस कंप्लायंसेस. इंटेंट क्लियर है, बिजनेस को फोकस कर रहे हैं, राइट डिस्क्लोजर एंड टाइमली डिस्क्लोजर कर रहे हैं, सो आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी चैलेंज. So ये पर ध्यान देना. so final closing question. So बहुत सारी SMEs tier 2 tier 3 cities में है, रायपुर में, राजकोट में, कानपुर में. So I think with all of these small cities having so many SMEs, वो कैसे मर्चेंट बैंकर्स तक पहुंचे, आप जैसे मर्चेंट बैंकर्स के पास कैसे they reach to you, and क्या क्या चीजें उनको रेडी रखनी, क्या क्या सवाल आपसे पूछने चाहिए before selecting you? सो देखो, जैसे मैंने बोला, यस, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस आर अक्रॉस द कंट्री, और वो टियर 2 टियर 3 में ज़्यादा मिलेंगे सिटीज़ में. बड़ी सिटीज़ में रहने वाले तो शायद ऑलरेडी उनके पास बहुत सारे एक्सेस हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी भी हैं, और बहुत सारे कंसल्टेंट भी इजीली अवेलेबल है. तो टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में ही गैप है जहाँ सही एडवाइस नहीं मिल पाती कई बार, क्योंकि एक्सपोजर की कमी होती है. बट मैंने देखा है संचित कि लास्ट 1-2 साल में प्रोमोटर्स की अवेयरनेस बहुत बनी है. बहुत सारे मेरे, आप तुम्हारे जैसे ही बहुत सारे लोग हैं जो पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, फिल्म इन्फ्लुएंसर्स हैं, चार्टर अकाउंटेंट्स या प्रोफेशनल अदर प्रोफेशनल्स हैं जो ऑलरेडी जगहों पे थे और उन्हें पता है इस मार्केट का फायदा, तो दे आर कम्युनिकेटिंग, दे आर इन्फॉर्मिंग देम. एंड सेम गोज फॉर पीपल लाइक अस. हमारे जैसे लक्ष्मण अंकल भी बहुत सारे हैं जो रोड शोज करते हैं, वहाँ के चैम्बर ऑफ कॉमर्स छोटे छोटे जो हैं इंडस्ट्री बॉडीज़ हैं, उनके साथ मिलकर सेमिनार्स करते हैं, वेबिनार करते हैं, जो अवेयरनेस बढ़ाने में कर पाते हैं. और फिर उनमें से फिल्टर होकर जो राइट पर्सनस होते हैं, राइट कंपनीज होती हैं, वो जो समझते हैं कि उनके लिए राइट टाइम है IPO का, वो फर्स्ट इन्वेस्टर्स को सिलेक्ट करते हैं. किसी भी इन्वेस्टर्स को कंपनी के प्रोमोटर्स को अगर IPO की तरफ जाना है तो दे शुड सेलेक्ट राइट मर्चेंट बैंकर. जैसा मैंने कहा, राइट मर्चेंट बैंकर क्या है, तो उनकी टेस्ट ये होनी चाहिए कि उसका क्रेडेंशियल क्या है, कितने पुराने हैं, कितने एस्टैब्लिश हैं. ऑब्वियसली दे कैन टेक रेफरेंसेस फ्रॉम द अदर्स हु हैव टेकन द लीड ऑलरेडी. उनसे पता लगाते हैं क्या है, वो क्या, उन्होंने कैसा परफॉर्म किया पास में, वो कैसी एडवाइस देते हैं. तो राइट एडवाइस देने वाले लोग होने चाहिए, ना कि यस मैन टाइप के होने चाहिए. ये इंपॉर्टेंट कि किसी भी वैल्यू पे किसी भी वैल्यू पे IPO करके खत्म करो. वो इंटेंट अगर आपका नहीं है तो आपको वही सिलेक्ट करना है जो राइट एडवाइस दे, राइट टाइम पे आपको बोले कि IPO करो, ना कि अभी करो तो मुझे पैसा मिलेगा, फीस मिलने वाली है. वो इंटेंट ना हो. तो आपको भी जैसे हम प्रोमोटर को सिलेक्ट करते हैं उनके इंटेंट की बेसिस पे, वैसे ही आप भी पेडिग्री एंड पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड के बेसिस पर सेलेक्ट करें. एंड देन उनके एडवाइस के हिसाब से आपको काउंटर चेक करना है, क्रॉस चेक करना है, वो कर सकते. बट अगर एक बार आपने ऑनबोर्ड कर लिया तो जैसी राइट एडवाइस मिलती रहे वैसे वैसे आपको चलना चाहिए. दैट वाज द थिंग. Thank you so much, sir, and we'll see you soon. Sure, and sure. on this podcast. And I think it was really great. यस, ऐसे भी है कि अभी मार्केट शायद चेंज हो रहा है, कभी
there will be blips, there will be ups and downs in every market. Right. लेकिन मुझे बिल्कुल भरोसा है कि इंडियन इकोनॉमी इज ग्रोइंग, सो एसएमईज आर आल्सो ग्रोइंग. गवर्नमेंट भी चाहती है एसएमई को फोकस करना, और लिमिट्स भी एमएसएमई में डबल से ज़्यादा कर दी है. So they know that these are the sectors where focus need to be there. And there is a huge investors who are willing to put money. So right companies अगर हैं, so they can come out with that. They will flourish. Right. Thank you. Thank you, sir. And that brings us to the end of today's episode. We've explored the milestone, challenges, and strategic decisions that define the journey from a private company to a public traded entity. We discussed why SMEs are increasingly choosing IPOs, what are the timelines, what are the costs, the unique challenges, and the red flags that investor should watch out for. Thank you for tuning into the Corner Office. Stay connected with us for more discussions on the corporate world, and don't forget to like, share, and subscribe our channel.